Hello everyone, I am Nikhil and this is Vishal sir. We are extremely elated and happy to announce our first book together, that is Mapping और History Optional. ये किताब बहुत साल से आने वाली थी and I think 4 months ago we promised to students कि ये आएगी जरूर इस साल and here it is now. Before going into the details of the book, I need to discuss थोड़ी सी बैक स्टोरी. हमने जब किताब बनाने की सोचा, मेरा बड़ा सिंपल काम है. वी हैव बीन टीचिंग मैपिंग, नोट्स आर रेडी, तो किताब तुरंत बन जाएगी. इट इज जस्ट डिजिटाइजेशन ऑफ द नोट्स. बस हमने एक गलती करी. We did one major mistake. We went to the market for market survey to see what kind of material is available in different bookshops with different publications. And to our horror, we found that there was not a single good book. There are at least half a dozen other books. I would not take names, but what we noticed when we studied all those books is every book has some kind of problem. Either they have no exhaustive site collection, otherwise you will see some of them lacks accurate site descriptions. कई जगह लोकेशन गलत दिए हुए. And if all these three things are present, the categorization is not as per UPSC's question paper. चलो ये भी हो गया. तो भी ना, it looks more like the compilation of sites rather than having pedagogical thought behind it. किताब को बनाए कैसे. किताब को बनाया जनरली ऐसे गया है in most of the other cases कि हमने compilation दे दिया, उसको यूज बच्चा कैसे करेगा. How to ease the pain of a student, how to ensure maximum retention with minimum efforts ताकि नंबर मैक्सिमाइज हो. ये प्रोसेस को ध्यान रखते हुए there is hardly any book out there. तो जब हमने उसके बारे में सोचा तो हमारा जो शो का प्लान था 2-4 हफ्ते का, वो 4 महीने का हो गया. बट एंड उसमें भी 5 लोगों की कड़ी मेहनत लगी है. अपार्ट फ्रॉम बोथ विशाल सर एंड मी, वी हैव 3 अदर पीपल, वी हैव मेंशन्ड देम इन द बुक आल्सो. सो विथ ऑल दिस थिंग्स अल्टीमेटली हियर इज द बुक एंड इट इज आल्सो विजुअली वेरी अपीलिंग. किताब देख के खुशी भी बहुत होती है ना सर? हाँ सर, प्रॉमिस किया था कि प्री के जस्ट नेक्स्ट दिन लॉन्च करेंगे और देखो आज लॉन्च हो रहा है ना. So I request Vishal sir to discuss the features and thinking behind the design of the book. थैंक यू सर. तो जैसे निखिल सर ने बोला कि विजुअली अपीलिंग हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश करी है. बिकॉज वाई, देखो कॉस्मेटिक जो कंपोनेंट होता है किसी भी पब्लिकेशन का, इट इज कॉस्मेटिक बट इट इज आल्सो नेसेसरी. क्यों? बिकॉज अगर नहीं होगा तो इट बिकम्स वेरी ड्रैब, वेरी मोनोटोनस, एंड वो पढ़ने का जो जॉय होता है ना, that gets lost. So we have taken a choice not to go for black and white monochromatic print, rather full color में हमने इसको print किया हुआ है. And जो मैप का अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, एंड साइट्स के डिस्क्रिप्शंस के अलाइनमेंट है, दैट हैज बीन डन इन अ वे to not only improve the aesthetic appeal of the book but also to encourage the student to read each and every word, and it is been presented visually in such a manner कि वो imprint भी हो जाता है माइंड में 2-3 बार पढ़ने के बाद. राइट नाउ as for the other features, जैसे निखिल सर जस्ट इन्फॉर्म्ड अस कि जनरली illogically compiled books होते हैं. तो हमने क्या किया है, we have divided our book into 4 clear sections, parts A, B, C and D. Prehistoric sites, proto-historic sites and Harappan civilization sites, historic era sites, and then some thematic maps covering themes such as temples, architecture, sculpture, cultural sites, centers of education, ports, forts, important battles, etc, etc, etc. राइट. टोटल हमने 45 हाई क्वालिटी मैप्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं. ईच ऑफ देम मेटिकुलसली नंबर्ड. कोई वहां पर साइट्स में कोई इनएक्यूरेसी नहीं दिखेगा आपको, प्लॉटिंग में भी और नंबरिंग में भी. They have been organized into 37 different themes which have been classified into 4 clear sections, right? So 37 themes, 45 maps, 4 sections. अच्छा. Then another problem that sir mentioned was कि आप generic sources से अगर पढ़ते हो, if you look at the material and site का description देखते हो, you find it extremely lacking. उसमें फालतू की information बहुत सारी भरी होती है.
स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है इसमें याद कौन सा रखने वाली चीज है और भूलने वाली कौन सी चीज है। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज कि हर एक सेक्शन के पहले, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं सर, कि हर एक सेक्शन के पहले वी हैव इंक्लूडेड 2 लिटिल बॉक्सेस, बेसिक इंफॉर्मेशन का बॉक्स एंड कॉमन फीचर्स का बॉक्स, राइट। एंड व्हाट दिस allows us to do is it allows us to keep the actual site descriptions extremely short and precise, यानी कि हर साइट में जो भी मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है, बाकी जो जेनरिक इंफॉर्मेशन है यू कैन एक्सेस दिस थ्रू दी कॉमन फीचर्स एज वेल। इसे रटना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, रटना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, देन मैपिंग में समथिंग नोन एज द परेटो प्रिंसिपल अप्लाइज। सर एक बार समझाएंगे परेटो प्रिंसिपल क्या? 80-20 सर आप बताइए। 80-20। तो उसमें देखो प्रिंसिपल ये है कि you do not need to put in 100% effort in order to get 100% result. वो आ जाएगा, but what you will find is कि if you put in 20% effort, you are going to get to 80% of your final goal, right? Saying that your final goal is reaching 100, तो केवल 20% एफर्ट डाल करके आप 80 तक पहुंच सकते हो, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि आप बाकी 80% एफर्ट डालते भी हो तो यू द गेन्स दैट यू गेट इन द एंड आर मार्जिनल, केवल 20% एडिशनल रिटर्न्स मिलते हैं। तो स्मार्ट वर्क ये बोलता है कि भाई मान लीजिए बुक में अराउंड 600-650 साइट्स होंगे टोटल मिला करके, राइट। तो यू डोंट नीड टू मग अप ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बार बार रिपीट करेंगे तो इट इज पॉसिबल, बट यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू दैट। व्हाट यू नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई and remember clearly the most likely sites to appear in every year's question paper, right? So for that what we have done is कि हमने यहाँ पर पिछले 10 साल के last 10 years के PYQs लास्ट में इंक्लूड किए हुए हैं, so students have access to them as well. And additionally, more importantly, हमने किया क्या है that for every section or every theme we have indicated कि कौन से साइट्स प्रीवियसली अपीयर हो चुके हैं पेपर में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग एट द पोस्ट मौर्यन ईरा साइट्स, तो द साइट ऑफ शिशुपालगढ़ और कलिंग नगरी हैज अपीयर्ड इन 2017 एंड 2020। सिमिलरली नागार्जुना कोंडा और विजयपुरी हैज आल्सो अपीयर्ड इन 2013 एंड 2017। इस तरह से आप देखोगे तो इस पूरे पोस्ट मॉडर्न ईरा साइट्स में although there are 23 sites, but those that have appeared previously are only 6 or 7 sites. तो उन 6 or 7 out of 26 or 27 23 sites उन पे फोकस ज्यादा करना है, तो that makes the work very easy. हमने जो सेक्शन दिया हुआ है एंड में, the PYQ section, we have made sure that in that PYQ section we pick up the maps given by UPSC officially. अगर किसी साल उन्होंने साइट लोकेशन गलत दिया हो, वैसे रखा हुआ है, किसी साल स्टेट बाउंड्रीज दिए हो वैसे रखे हुए हैं, तो एटलीस्ट इन द PYQ solved PYQ section of last 10 years, the maps that are there are reproduction of authentic UPSC maps. हाँ, तो हमने वहां पर खुद से अपने मैप्स नहीं बनाने की जहमत करी है। अच्छा, देन another thing that I wanted to tell you about is the inclusion of a dedicated section on notable archaeologists. तो किताब के शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा a dedicated section on notable archaeologists, right? तो if you look at the book right here, तो हमने करीब 40 odd archaeologists इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, एंड इसका फायदा क्या होता है, लेट मी जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, राइट। तो द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट मेंशन्ड इज कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर साइटेशन, वो आपके पास किताब आएगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैकेंजीज मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड द अमरावती स्तूपा, वेयर ही कंडक्टेड सिस्टमैटिक स्टडीज between 1816 to 1820, preserving sketches and plans of the site. So he was one of the archaeologists involved in the preservation or in the, you can say, reimagination of the Amravati Stupa. Amravati Stupa physically तो exist करता नहीं है, तो he was the one who was involved in this. This is an additional point of information that you get to know about the Amravati Stupa. तो अमरावती का साइट अगर आता है आपके मैप में, this is one more point that you can add, one more unique aspect. साथ में you also remember the name Colin Mackenzie, right? So Colin Mackenzie also associated with the preservation of archaeological monuments. Then you can cross-reference it with what was going on in Indian history at that point of time. This was the height of utilitarian thought. तो industrial revolution शुरू हो गया था, utilitarian thought had started to
dominate, and preservation of the cultural heritage of India, physical cultural heritage of India had become an important priority for the colonial regime. उसका मतलब ये नहीं था कि preservation of Indian monuments for India, rather these trinkets were to be taken to Europe and placed in museums so that the glory of the empire could be increased. I think in the same case of अमरावती स्तूपा, हाँ, लूट के ले गए थे पूरा. वहाँ पे एलियट मार्बल किसको कहते हैं? या एलियट मार्बल, द पार्थेनॉन, ग्रीस से वो उठा करके ले गए थे. तो अंग्रेज दुनिया भर में यही कर रहे थे इस समय पर, यहाँ पे भी यही किया. तो प्रिजर्वेशन, हाउ इट बिकेम अ प्रॉक्सी फॉर मॉन्यूमेंटल लूट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम एविडेंट. तो इस तरह से आप जब रेफरेंसिंग करने लगते हो ना, इट बिकम्स मच मोर इजियर टू सॉर्ट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन. तो इट प्रोवाइड्स ग्रेट कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, देन we have also included in this book 30 blank practice maps or a workbook format. तो इसका पर्पस ये है that after you have done your preparation, you should be able to periodically test yourself. और यहाँ पे भी हमने worksheets को बहुत logically organize किया हुआ है. There are a total of 30, जिसमें से कि 20 are dedicated to the 4 parts. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के हर एक के 5-5 वर्कशीट्स हैं. एंड उसके बाद 10 वर्कशीट्स ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे थीम्स कवर हो रहे हैं. राइट, दे आर गोइंग टू अलाउ यू टू डू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड रिवीजन, प्रैक्टिस मैप्स. लाइक प्रैक्टिस मैप्स. अच्छा, इसके जो सोल्यूशंस हैं वो हमने जानबूझ करके किताब में नहीं इंक्लूड किए हुए हैं. अदरवाइज व्हाट हैपेंस ना, दैट देयर इज नो बैरियर फॉर यू टू एक्चुअली डू द वर्क, लर्न द साइट एंड रिमेंबर ईच ऑफ देम. आप करते क्या हो कि अच्छा ये है नंबर 20, आप खोल के पीछे से देख लेते हो एंड देन यू मूव अहेड. एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है कि आपका वो साइट प्रिपेयर हो गया. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ लिटिल बैरियर. तो सोल्यूशन जो है आपको हमारे वेबसाइट पर इसी वाले लिंक पर ही मिल जाएगा. राइट, नाउ regarding the availability of this book, currently it is available through our website, the link for which is included in the description of this video. Additionally, जो हमारे संडे लाइव और हॉट 500 के स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा मैपिंग मॉड्यूल मिलता है, वो तो उसके साथ बुक भी बंडल्ड है. फॉर अदर स्टूडेंट्स जो मैपिंग मॉड्यूल खरीद रहे हैं उनको भी ये बुक मिलता है. एंड दोज हु डोंट वांट टू लुक एट द वीडियोस, वॉच द वीडियोस, सिंपली परचेज द बुक, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ये किताब जो है, दिस इज नॉट मियरली कलेक्शन ऑफ साइट्स एंड डिस्क्रिप्शन. It is actually a fully thought out pedagogical tool to finish the mapping, which is one of the most important questions in history optional paper A, rather paper 1, question 1A. Yes. So I hope everybody, this is relevant for each and every student of history optional. चाहे आप newbie हैं, veteran हैं, you're trying to improve your score, or if you are trying to improve your ranks, already selected भी हैं, सबके लिए useful होगा. ठीक है. So I hope you enjoy this book as much as we do. So purchase it and level up your preparation.